Welcome to all. I am Dr. Meera Gupta, Professor and Head, Department of Physics at Government Dr. W. Patankar, Girls PG College, Durg. Today I am presenting a video lecture on photonic devices. Under this topic, we will be discussing about the light emitting diode LED for the MSc Physics second semester student, paper 3rd, unit 4th. Now, these are the contents of this video lecture. First, introduction, then what are photonic devices, light emitting diodes, their characterization, types of LEDs, visible LED and invisible LEDs, their advantage and disadvantage, and their applications. Now, introduction. The word photonics is derived from the Greek word phos, meaning light. It appeared in the late 1960s to describe a research field whose goal was to use light to performance functions that traditionally fell within the typical domain of electronics, such as telecommunications, information processing, etc. Photonic is the physical science of light, photon generation, detection, and manipulation through emission, transmission, modulation, signal processing, switching, amplification, and sensing through covering all light technical applications over the whole spectrum. Most photonic applications are in the range of visible and near infrared light. The term photonic development as an outgrowth of first practical semiconductor light emitters invented in the early 1960s and optical fiber developed in 1970s. Now, what are photonic devices? Photonic devices are components for creating, manipulating, or detecting light. This can include laser diodes, light emitting diodes, solar and photovoltaic cells, displays, and optical amplifiers. Other examples are devices for modulating a beam of light and for combining and separating beam of light of different wavelengths. Now we come to the topic light emitting diode LEDs. The light emitting diode is a two-lead semiconductor light source. In 1962, Nick Holonyak has come up with an idea of light emitting diode. The light emitting diode is a p-n junction diode. It is a specially doped diode and made up of a special type of semiconductors. When the light emits in the forward bias, then it is called as an light emitting diodes. These are the models of light emitting diodes. से लाइट एमिटिंग डायोड जो कवर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे जो अंदर लाइट जनरेट होती है, जो वेवलेंथ्स निकलती हैं, रेडियो मैग्नेटिक वेवलेंथ रेडिएशंस जो निकलते हैं वो बाहर हमें दिखाई दे सकें. तो ये जो है लाइट एमिटिंग डायोड के डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं. तो हमने देखा कि लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो पीएन टाइप का एक स्पेशली डोप्ड जो है वो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है, और इसमें जो है लाइट एमिट होती है जो कि हमको दिखाई देती है. चलिए, material used for different types of light emitting diodes. So first generally used material is gallium arsenide for infrared, gallium arsenide phosphide, red or infrared or orange. फिर then aluminium gallium arsenide phosphide, high brightness red, orange and yellow. Gallium phosphide, red, yellow and green. Aluminium gallium phosphide,
say green. Gallium nitride, green, and emerald green. Gallium indium nitride, near ultraviolet, bluish green and blue. Silicon carbide, blue as a substrate. Zinc selenide, blue. Aluminium gallium nitride से अल्ट्रावायलेट। तो ये डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं जिनको हम अलग अलग कलर के एलईडीज बनाने के लिए, अलग अलग कलर की लाइट एमिट करने वाले एलईडीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी। The recombination of the charge carriers occur in p-type material and hence p material is the surface of the LED. For the maximum emission of light, the anode is deposited at the edge of the p-type material. The cathode is made of gold film and it is usually placed at the bottom of n-type. This gold layer of cathode helps in reflecting the light to the surface. The gallium arsenide phosphide is used for the manufacturing of the most of LEDs, which emits red or yellow light for emission. The LEDs are also available in green, yellow, amber and red in color. This is the symbol and construction of LED. LED symbol जो है वो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें पी टाइप जो है वो एनोड है, जैसा पीएन जंक्शन में होता है। ये प्लेट टाइप का जो है ये कैथोड है। एनोड पर ये एरो लगा होता है और यहाँ एनोड से ही दो एमिशन एरोस निकलते हैं। ये शो करता है कि ये यहाँ से लाइट एमिट हो रही है और यही एलईडी का विशेष जो है वो डिफरेंट पीएन जंक्शन से डिफरेंट टाइप का जो है वो सिंबल है जो ये एरो शो करता है लाइट एमिटिंग को। देन इस कंस्ट्रक्शंस में आप देख रहे हैं इधर ये आपका ये ऊपर पी टाइप मटेरियल है जैसा कि लिखा हुआ है, यहाँ ये नीचे एन टाइप मटेरियल है, नीचे ये गोल्ड फिल्म बनी हुई है, ये मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिकम्बाइन जब होते हैं तो यहाँ से इसका लाइट का एमिशन होता है। इसकी वर्किंग हम डिटेल्स में आगे डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप देखिए। देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। The working of LED depends on the quantum theory. The quantum theory states that when the energy of electron decreases from the higher level to lower level, it emits energy in the form of photons. The energy of photons is equal to the gap between higher and lower level. Then LED converts electrical energy into light energy by emitting photons. The wavelength of light depends on the energy band gap between conduction band and valence band of the semiconductor used. The LED is connected in the forward bias, which allows the current to flow in the forward direction. The flow of current is because of the movement of electrons in the opposite direction. The recombination shows that electrons move from the conduction band to valence band and they emit electromagnetic radiations. Now, working. तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रीवियस स्लाइड में सबसे पहले कि इसकी जो वर्किंग थ्योरी है वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर निर्भर करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे जंप करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में एमिट करता है, देन कन्वर्ट करता है, देन ये ऑलवेज जो है वो फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और इसका रिकम्बिनेशन जो है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जैसे इसमें शो हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। ये आपका पी टाइप है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसमें पी टाइप और एन टाइप के जंक्शन के बीच में ये डेप्लेशन लेयर बनी हुई है। एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ट्रू कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन का मतलब आपको पी को पॉजिटिव से जोड़ना है
और एन को निगेटिव से जोड़ना है। तो एलईडी जो है फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए हमने पी को बैटरी के बाहर एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है और एन टाइप को निगेटिव से जोड़ा हुआ है। इससे क्या होगा कि पी टाइप के जितने होल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ ये सब एक दूसरे को रिपल करेंगे। कहा किधर? डेप्लेशन लेयर की तरफ। इधर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो सब इसको रिपल करेंगे डेप्लेशन लेयर की तरफ। तो जब डेप्लेशन लेयर की तरफ सब पुश होंगे या उधर रिपल होंगे तो डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, मतलब वो नैरो हो जाएगी। तो नैरो विड्थ होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप की तरफ जंप करेगा। जंप करने से वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होगा और रिकम्बाइन होकर के वो जो एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, जो कि बाहर एनर्जी आपको लाइट के रूप में दिखाई देगी। इसको आप इस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये आपका ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड है, नीचे ये बैलेंस बैंड है। ये पी टाइप के जो होल्स हैं वो आपके नीचे बैलेंस बैंड में हैं और इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप के हैं वो आपके कंडक्शन बैंड है। मतलब ये हायर एनर्जी लेवल पर हैं और ये लो एनर्जी लेवल पर हैं। इनको रिकम्बाइन होने के लिए आपके हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आना पड़ेगा और इसके लिए इनको अपनी एनर्जी जो है वो एमिट करना पड़ेगी। जब एनर्जी लॉस करेंगे या एमिट करेंगे तो वही लाइट के रूप में एमिट होगी, फोटॉन्स के रूप में एमिट होगी। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जंप करेंगे तो जो एमिटिंग एनर्जी की वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करेगी ये फॉरबिडन गैप के ऊपर। फॉरबिडन गैप जितना ज़्यादा होगा उतना जो है वो हायर वेवलेंथ जो है वो बाहर एमिट होगी। तो ये डिपेंड करता है कि वेवलेंथ जितनी वेवलेंथ होगी लाइट की उसी के अनुसार, उस वेवलेंथ के अनुसार ही हमको एलईडीज में जो है वो कलर दिखाई देंगे। मतलब यदि रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, मतलब एमिटिंग वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग है तो हमको यहाँ पर रेड लाइट दिखाई देगी। यदि येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एमिट हो रही है तो येलो लाइट दिखाई देगी। यानी वेवलेंथ जो दी होगी उसका जो वो निर्भर करेगी किसके ऊपर? दो तीन चीज़ों के ऊपर। एक तो आपने सेमीकंडक्टर जो है वो किस मटेरियल को लिया हुआ है, किस मटेरियल से आपने ये पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाए हुए हैं, मटेरियल्स। दूसरी चीज़ इस पर फॉरवर्ड बायसिंग। तीसरी चीज़ इनके बीच का जो फॉरबिडन गैप है वो कितना है और डोपिंग के ऊपर भी निर्भर करेगी। आपने हाईली डोप्ड किया है उसका कितना हाईली डोप्ड किया है उसका रेशियो क्या है। तो सेमीकंडक्टर्स, उनकी डोपिंग मेथड, फॉरवर्डिंग बायसिंग और नेक्स्ट इनका फॉरबिडन गैप, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी और कौन से कलर का एलईडी दिखाई देगा हमको, कौन से कलर की लाइट जो है वो एलईडी में हमें दिखाई देगी। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा एलईडी। देन करेक्टरिस्टिक्स तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एलईडीज जो हैं वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में ही उपयोग, जैसा पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस रहता है वैसे एलईडीज का भी रहता है। इसमें आप देख रहे हैं ये आपकी फॉरवर्डिंग बायसिंग है, ये आपको फॉरवर्ड करंट है। तो अलग अलग एलईडीज का जो करेक्टरिस्टिक्स है, आईवी कर्व है, वो अलग अलग है। जैसे देख रहे हैं इंफ्रारेड का है, फिर रेड का है, फिर अंबर का है, फिर येलो का है, ग्रीन का है, ब्लू का है, वॉयलेट का है। इस तरह से अलग अलग एलईडीज का ये आईवी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि उनसे निकलने वाली वेवलेंथ्स जो हैं वो अलग अलग होंगी। तो ये इस तरह से आपका आईवी कर्व है, वोल्टेज है और ये करंट है। ये ग्राफ जो है वो इस तरह से दिखाई देगा, आपको इस तरह से प्राप्त होगा। देन LEDs are mainly classified into two types, say visible LEDs and invisible LEDs. Visible LEDs is a type of LED that emits visible light. These LEDs are mainly used for display or illumination, where LEDs are used individually without photosensors.
तो विजिबल एलईडीज क्या होता है, जिसमें हमें कलर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे हमको कुछ डिस्प्ले करना है और उसको इल्यूमिनेशन करना है, अलग अलग डिस्प्ले करना है, तो अलग अलग कलर की लाइट जो है वो एलईडीज लगा सकते हैं। तो ये विजिबल एलईडीज हैं जिसमें हमको लाइट जो है वो अलग अलग कलर की लाइट जो है वो दिखाई देती है। इनविजिबल एलईडीज इज टाइप ऑफ एलईडी दैट इमिट्स इनविजिबल लाइट, जैसे इंफ्रारेड लाइट। These LEDs are mainly used with photo sensors such as photodiodes. कई जगह पर हमको ऐसी LEDs जो हैं सेंसर के रूप में उपयोग करते हैं जहां हमको अलग अलग कलर की लाइट का बहुत आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा रिमोट्स वगैरह में विजिबल लाइट जो है आपके कैलकुलेटर वगैरह में रहते हैं, कंप्यूटर्स में रहते हैं। ये इनविजिबल लाइट्स जो है वो रिमोट्स वगैरह में अधिकतर यूज़ होते हैं। Then advantage and disadvantage. The brightness of light emitted by LED is depend on the current flowing through the LED. तो लाइट LED से जो लाइट निकल रही है उसका ब्राइटनेस क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट इसमें से कितनी फ्लो हो रही है। फ्लोइंग करंट के ऊपर जो है वो निर्भर करे। LEDs कंज्यूम लो एनर्जी। LEDs के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, इनका कंजम्पशन जो है वो एनर्जी के रूप में बहुत कम होता है। LEDs आर वेरी चीप एंड रीडली अवेलेबल, बस सस्ते होते हैं और हम जिस टाइप का चाहें वैसा जो है अपनी चॉइस के अनुसार इनको ले सकते हैं, हमको प्राप्त हो सकते हैं। LEDs आर लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं, स्मॉलर साइज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। LEDs हैव लॉन्गर लाइफ टाइम। LEDs का जो लाइफ टाइम है काफ़ी अधिक होता है। बल्ब जो है हम जब जलाते हैं तो उसमें फिलामेंट रहता है, फिलामेंट गर्म होता है, फिर वो लाइट एमिट करता है, उससे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और कुछ समय के बाद वो गर्म होकर के बल्ब जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन LEDs में ऐसा नहीं है। LEDs सालों साल चलते रहते हैं, इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी होती है क्योंकि इसमें हीटिंग प्रोसेस जो है वो नहीं होता है और इसलिए इनके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये लॉन्गर लाइफ टाइम इनका होता है। LEDs ऑपरेट्स वेरी फास्ट, दे कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ इन वेरी लेस टाइम। इनको हम टर्न ऑन मतलब ऑन ऑफ बहुत छोटे से टाइम में ही कर सकते हैं। इनमें ऑपरेशन जो है वो बहुत फास्ट होता है। LEDs do not contain toxic material like mercury which is used in फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प जो कलरफुल लैम्प्स जो होते थे पहले, जिनका उपयोग होता है अभी भी, फ्लोरोसेंट लैम्प में जो है वो हम मरकरी का यूज़ करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल यूज़ करते हैं। बट LEDs जो है इसमें हम कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, इसमें नहीं यूज़ होता है। LED कैन एमिट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। LEDs जो है वो डिफरेंट कलर के हमको जो है वो प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। हम विभिन्न तरह के कलर के LEDs जो है वो बना सकते हैं। डिसएडवांटेज में LEDs नीड मोर पावर टू ऑपरेट देन नॉर्मल PN जंक्शन डायोड। ये जंक्शन डायोड से इसका कंपैरिजन ये है कि जंक्शन डायोड के लिए हमें पावर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, बट LEDs में PN जंक्शन की अपेक्षा जो है वो अधिक पावर लगता है। लिमिनेसेंस एफिशिएंसी ऑफ LED इज लो। इनका लिमिनेसेंस जो है वो एफिशिएंसी इनकी जो है वो थोड़ा सा luminescence efficiency जो है वो कम होती है। Then there are applications. The various applications of LEDs are, इनका तो आजकल लगभग सभी जगहों पर इस्तेमाल होता है, बहुत अधिक एप्लीकेशंस है LEDs के, बट कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो इस तरह से बर्गलर अलार्म सिस्टम, चोर घंटी जिसको बोलते हैं, उस अलार्म में भी किसी भी तरह के अलार्म में जो है LEDs लाइट का जो है उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर्स आप यूज़ करते हैं, आप देखते ही हैं उसमें LEDs लगे रहते हैं, जो लाइट जलती है वो LEDs ही रहती है। पिक्चर फोन्स में भी होता है, देन ट्रैफिक सिग्नल में भी आपने देखा ही है। डिजिटल कंप्यूटर्स जो बनते हैं उसमें भी LEDs का उपयोग होता है। मल्टीमीटर्स जो होते हैं उनमें भी LEDs का उपयोग है। माइक्रो प्रोसेसर्स में तो होता ही है। डिजिटल वॉचेस जो आजकल आ रही हैं उनमें भी LEDs उपयोग होती है। ऑटोमोटिव हीट लैम्प्स जो होते हैं उनमें भी उपयोग है। कैमरा फ्लैशेस में उपयोग होता है और एविएशन लाइटिंग में भी
इन सब का एलईडीज़ का ही इन सब में उपयोग होता है। तो इनके आजकल बहुत अधिक एप्लीकेशंस है, मोस्टली हर जगह एलईडीज़ का जो है वो उपयोग हो रहा है। देन दिस वीडियो इज फिनिश्ड। Thank you to all.